हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद स्टडी विद गुरुकुल्स। और हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक हमने लास्ट किया था, दैट वाज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि देयर आर मच मोर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स टू डिस्कस। इसमें से कि पहला है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। क्या होते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स? बेसिकली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स का मतलब है व्हेन द पेशेंट और एन इंडिविजुअल अपने कनेक्शंस भूल जाए। ही फॉरगेट्स हिज कनेक्शन विद द रियलिटी। जो कनेक्शन उसके आइडियाज़ और इमोशंस के साथ रहता है वो कनेक्शन नहीं रहता है। एंड इट इन्वॉल्व्स द फीलिंग ऑफ द अनरियलिटी इन स्ट्रेंजमेंट। मतलब देयर इज अ strangeness in the behavior. There is a depersonalization. Depersonalization means an individual no longer identify with himself or herself, and that makes a loss or shift of the identity. He basically forgets his identity. He shifts his identity or completely loses it. We can study these dissociative disorders into these four different categories. In this, the first one is the dissociative amnesia. These four are the dissociative amnesia, dissociative fugue, and dissociative identity disorder and depersonalization. So first one is the dissociative amnesia. The dissociative amnesia means there is extensive and selective memory loss and there is no organic cause for it. Means कोई organic cause नहीं है, like head injury or any disease. ये माना जाता है, इट इज़ बेसिकली सीन दैट डिसोसिएटिव एमनीशिया अकर बिकॉज ऑफ एन ओवरवेलमिंग stress. And what are the symptoms? The basic symptoms of this dissociative amnesia is they basically forget their past and they forget the people who are associated with it. They forget the event, places, and even names also. Names of their knowns, names of their loved ones. Next is the second one is the dissociative fugue. Due to an unexpected travel away from home, office, or the workplace, sometimes patient or people may assume a new identity and they are unable to recall their previous identity. Basically, they forget their previous identity and they get enter into a new identity. They form a new identity. And ये solve कैसे होता है, इसका कोई time duration नहीं होता है. Basically, it is being seen, this fugue usually ends when the person returns to the regular life or wakes up. Next is the dissociative identity disorder. In this, the patient forms a multiple personality. It is a multiple personality disorder and in which the patient is very dramatic. Means he will show different characters as if he is an actor, and it is basically associated with traumatic experiences of the childhood. Traumatic experiences may be physical abuse, it can be experience of an earthquake, death of his parents in front of him, or any other traumatic experience. And the fourth one is the depersonalization. It's a dream-like state in which the person has a sense of being separated from self, from the reality. He basically forgets its reality की वास्तविकता क्या है, and he lives in a dream like state. एक सपनों की दुनिया में रहता है, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी आइडेंटिटी को डीपर्सनलाइज कर देता है। मतलब वो मानता ही नहीं कि वो रियलिटी में क्या है, वो अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है, उससे अलग कर लेता है, उससे भिन्न कर लेता है। आपने ऐसा बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। तो दीज आर फोर बेसिकली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स कैटेगरीज इन इट। नेक्स्ट इज द मूड डिसऑर्डर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मूड डिसऑर्डर्स means it is disturbance in a mood or it can be due to a prolonged emotional state. मतलब एक जो particular stage है वो काफ़ी लंबी चल रही है, prolonged चल रही है. There are three main types of the mood disorders which we are going to discuss is depressive mood disorders, maniac and bipolar disorder. Depressive disorder जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, it is depression means it is the most common mood disorder. एंड इसके जो फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट आर दी ऑफकोर्स जेनेटिक, हेरिडिटी, एज एंड जेंडर. जेंडर आप कैसे कहेंगे? मोस्ट ऑफ द वुमेन आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ वेरियस सोशो कल्चरल फैक्टर्स. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स डिप्रेशन डिसऑर्डर के? यू कैन ईजिली मेक आउट अ डिप्रेसिव पेशेंट. यू विल सी कि उसको देयर इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट. मतलब जो एक्टिविटीज़ में उसको पहले इंटरेस्ट था
he or she will lose interest in it. He will not find any pleasure in activity. They will be just lying on in the bed. They will not eat, even they will not bath. They will not do their daily course activities also. And you can see a marked changes in their physical symptoms as well. जैसे there will be change in body weight, they will be extremely weak, or they may be overweight because of the eating, because of the depressive eating. There will be problem of sleep, there will be tiredness, they will be continuously complain of being tired, being fatigued in spite of doing anything. मतलब कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी उनको लगेगा बहुत थके हुए हैं, हमें तो ये भी नहीं हो रहा, हम नहीं कर सकते, बहुत वीकनेस है. दे विल अनेबल टू थिंक द थिंक क्लियरली, मतलब उनको कोई भी सोच क्लियरली समझने डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है. दे विल बी फील एजिटेटेड, एंड उनका जो बिहेवियर है बहुत स्लो डाउन हो जाएगा. दे विल स्पीक वेरी स्लोली, बहुत टोन पिच आवाज़ की बहुत कम हो जाएगी. बॉडीली मूवमेंट्स बहुत रिड्यूस हो जाते हैं. एंड जब ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है, इंटेंस हो जाता है, तो इवन पेशेंट अटेम्प्ट थॉट ऑफ डेथ एंड सुसाइड. दे हैव अ सीवियर फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड एक्सेसिव गिल्ट. उनको लगता है कि हम किसी मतलब के नहीं हैं, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसी वर्थलेसनेस उनको फीलिंग आती है, और गिल्ट होता है कि सब कुछ जो हुआ मेरी वजह से हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे को. ये मतलब बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव गिल्ट एंड वर्थलेसनेस उनको डेथ और सुसाइड के आइडियाज़ भी आते हैं. नेक्स्ट इज़ द मेनिया एंड द बाइपोलर. ना मेनिया जो चीज़ है वो कभी भी और रेयरली होता है कि वो अकेले हो. मीन्स इट यूजली ऑल्टरनेट विद डिप्रेशन. मतलब डिप्रेशन, मेनिया डिप्रेशन ऐसे ऑल्टरनेट होता है. एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? द पेशेंट विल बी वेरी यूफोरिक, मतलब बहुत मतलब के हंसते जा रहे हैं, कोई रीज़न ही नहीं है. दे विल बी एक्सट्रीमली एक्टिव, मतलब पेसिंग करेंगे इन द कॉरिडोर, इधर से उधर भागेंगे बिना मतलब के, कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी. दे विल बी एक्सेसिवली टॉकेटिव, बहुत बात करेंगे, किसी से भी राह चलते से बात करेंगे. एंड दे विल बी ईजिली डिस्ट्रैक्टेबल, मतलब बहुत ईजिली से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. अभी कुछ कर रहे होंगे और उन्होंने कुछ देखा, कुछ आवाज़ आई, और फटाक से डिस्ट्रैक्ट होकर उस तरफ भागेंगे. तो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ द मेनिया. नेक्स्ट इज द बाइपोलर. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बाइपोलर मतलब इसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों के फेजेस आते हैं. एंड कभी कभी बीच में नॉर्मल मूड भी आ जाता है, तो इसको कहते हैं बाइपोलर मूड. इसमें भी सेम क्या है, डिप्रेशन और मेनिया दोनों के सिम्टम्स जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो आते हैं. एंड मेन चीज़ इसमें यह है, द सुसाइड अटेम्प्ट इज हाईएस्ट इन दिस डिसऑर्डर. एंड इसमें भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस दिस बिहेवियर. जैसे कि एज हुआ, जेंडर हुआ, एथनिसिटी. आपको आप बोलोगे एथनिसिटी कैसे इफेक्ट हो सकती है. जापानीज जो है दे आर वेरी मच प्रोन टू गेट डिप्रेशन एंड दिस बाइपोलर डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ देयर serious lifestyle. And it has been seen that teenagers and the people who are old, like 70 year plus, and men, they are more risk for getting the depression, and ultimately they attempt suicide. Men contemplate suicide more than women, ये भी देखा गया है. नेक्स्ट इज़ द बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. ये बेसिकली स्पेसिफिकली चिल्ड्रन में ही होता है. एंड अगर बच्चे निगलेक्ट किए जाते हैं इस टाइम पे, तो इट कैन लीड टू द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लेटर इन लाइफ. इट डिस्टर्ब्स देयर पर्सनैलिटी एंड डेफिनेटली ड्यू टू विच दे सफर्स द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. एंड वाई बच्चों में होता है, मतलब बच्चों में क्यों होता है? चिल्ड्रन हैव लेस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. उनमें खुद की समझ नहीं होती है. दे आर लाइक रॉ मड, दे आर लाइक वैक्स. आप उसको जैसे समझाओगे वो वैसे ही बन जाएगा. एंड इट इज दे कैन बी ईजिली मोल्डेड. सो उनको क्या, उनकी खुद की कोई सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. दे डोंट हैव एनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी देमसेल्फ. वो धीरे धीरे लेटर ऑन एक्सपीरियंसेस के साथ उनकी आइडेंटिटी बनती हैं. दे डोंट हैव एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिगार्डिंग द रियलिटी. मतलब उनको दुनिया, उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स और उनके एक्सपीरियंस दिखाते हैं. एज सच उनकी खुद की कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होती है. तो बच्चों की दुनिया हम ही बनाते हैं, एज पेरेंट्स, एज फ्रेंड्स, एज टीचर्स. सो एंड लेटर ऑन जाके टीनेज के बाद उनको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है, एंड देयर आफ्टर वो अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, अगर वो निगलेक्ट होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस नहीं होते, ट्रॉमा होते हैं, एंड दे आर अनेबल टू कोप अप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. कुछ ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती हैं लाइक लॉस ऑफ अ मदर, फादर, और अब्यूज़, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ भी ऐसा है जो उन्होंने स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरे हैं. इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर बिहेवियर एंड इम्पैक्ट्स देयर डेवलपमेंट.
ये लेटर ऑन उनके चाइल्डहुड में, उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस में दिखने लग जाता है, एंड लेटर ऑन लाइफ में भी दिखने लग जाता है. मोस्ट ऑफ दीज इट हैज़ बीन समटाइम्स दे टर्न्स इनटू द एंटी सोशल पर्सनैलिटी. जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं. आपने देखा वो 14, 15, 16 साल के बच्चे रेप कर देते हैं, चोरी करते हैं. ये सब उनको देखा गया है बिकॉज ऑफ द बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इट अकर्स. नेक्स्ट इज द ऑटिज्म. इसमें ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म इज ऑल्सो नाउ ए ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर जिसमें कि बच्चों को दे हैव डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, शेयरिंग. उनको शेयरिंग करने में, अपने इमोशन शेयर करने में प्रॉब्लम होते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, बता नहीं पाते, बहुत अलूफ रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, कोने में रहते हैं, बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं. इवन उनको खाना भी मांगना नहीं होता है, उनको मदर को खुद देखना पड़ता है. वो सुबह से लेकर शाम तक एक कोने में बैठे ये रहते हैं. ऐसी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं. एंड देखा गया 70% ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन दे आर बीइंग मेंटली रिटार्डेड. एंड ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है उनके बिहेवियर में? वो रिपीटेटिव एक्शंस करते हैं, मतलब एक्शंस लाइक रॉकिंग. रॉकिंग मतलब हिलते रहते हैं रॉकिंग चेयर की तरह. उनके ये स्टीरियोटाइप बॉडी मूवमेंट्स होते हैं. ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये सेल्फ स्टिमुलेटरी होते हैं. वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, उन्होंने अपनी एक दुनिया बना रखी होती है, उसी में रहना वो रहते हैं. और उनको पूरी जो दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता है. इसलिए उनका सोशल इंटरेक्शन बहुत पुअर होता है. इनफैक्ट आई शुड से वर्स होता है. कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं होते, बोलते भी बहुत कम है. जैसे मैंने बताया कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं करते, खेलते नहीं हैं, घुलते मिलते बिल्कुल भी नहीं हैं. फ्रेंड्स, अगर ऑटिज़म के ऊपर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. नेक्स्ट इज द ईटिंग डिसऑर्डर. ईटिंग डिसऑर्डर से नाम से पता चल रहा है कि दिस इज़ अ डिसऑर्डर रिलेटेड विद द ईटिंग. बेसिकली जो और बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, बट मैं यहाँ पे 3 मेन डिसऑर्डर डिस्कस करने वाली हूँ. फर्स्ट वन इज द एनोरेक्सिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है? इंडिविजुअल को अपनी सेल्फ इमेज जो होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है, डिस्टर्ब होती है. वो अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ या मोटा हूँ, एंड उसकी वजह से वो खाते नहीं हैं, स्टार्व करते हैं. एंड दे कंपल्सिवली, उनका थॉट क्या रहता है? टू लूज़ द वेट. चाहे वो बेशक से 4-5 वो 45 kg के, बट उनको लगता है नहीं हम तो बहुत मोटे हैं, 80 kg के हैं, एंड वी नीड टू लूज़ वेट. दैट इज़ बिकॉज कि उनकी सेल्फ इमेज डिस्टर्ब्ड है, उनके उनके खुद के परसेप्शन में. इनका एक आइडिया है. नेक्स्ट इज द बुलिमिया नर्वोसा दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस. इंडिविजुअल ईट एक्सेसिव ऑफ अमाउंट ऑफ फूड. बहुत सारा फूड खा लेते हैं, बट फिर उनको एंग्जाइटी होती है कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, मैं मोटा हो जाऊँगा, मोटी हो जाऊँगी, जो भी है. देन दे वॉमिट इट, दे पर्ज इट. एंड क्या करते हैं? दे अब्यूज द लैक्सेटिव एंड डायरेटिक्स सो दैट वॉमिट अकर्स और वो वेट पुट ऑन ना करें. दिस इज बुलिमिया नर्वोसा. नेक्स्ट इज बिंग ईटिंग. बिंग ईटिंग मीन्स इट इज़ अनकंट्रोल्ड ईटिंग. आप खाते जाते पेट भरा, कोई मतलब नहीं है उससे, आप मिल रहा है खाना खाना. इट इज़ क्रेविंग फॉर फूड लिटरली. नेक्स्ट इज सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स. नाउ इसके बारे में आपको पता ही होगा, बट जस्ट बिकॉज मैं डिसऑर्डर डिस्कस कर रही हूँ तो ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है? बेसिक सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, अल्कोहल, टोबैको, ड्रग, मॉर्फिन, हशीम, गांजा, बार्बिट्रेट, कुछ भी हो सकता है जिससे इसकी जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, इंडिविजुअल है, जो डिपेंडेंस हो जाता है. तो बेसिकली देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन इट. वन इज़ द सब्सटेंस डिपेंडेंस एंड अनदर वन इज सब्सटेंस एब्यूज़. तो सब्सटेंस डिपेंडेंस मतलब जब इंसान लेने लगता है धीरे धीरे तो उसमें फिर क्या होता है? इंटेंस क्रेविंग होती है, और जब वो उसको नहीं लेता तो उससे होता है विड्रॉल सिम्टम. दैट इज़ ऑफ द कंपल्सिव ड्रग एंड अल्कोहल इनटेक. अगर आप ड्रग और अल्कोहल लेने लग गए हो और सडनली आप सोचते हो कि अब मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तब जो है विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस डिपेंडेंस कहते हैं. और ये सब्सटेंस एब्यूज़ हो जाता है कब? जब आप लेते ही रहते हो, आप बंद नहीं करते, आप लेते ही रहते हो, लेते ही रहते हो, और उसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं. लिवर ख़राब हो जाता है, या तो आपको पता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. बॉडी वीकनेस होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, अल्सर्स, कैंसर, ये सब कुछ होता है. तो वो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं. एंड ये जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो क्या करता है? सिर्फ उनकी बॉडीली और फिज़िकली वो वहाँ तक रुकता नहीं है. इट डैमेजेस देयर सोशल फैमिली रिलेशंस एंड परफॉर्मेंस एट वर्क. नाउ अल्कोहल, ये सब्सटेंस अब्यूज़ एक ऐसी चीज़ है कि एक IAS ऑफिसर भी
अपना काम धाम छोड़ के एक सब्सटेंस अब्यूज़ का केस बन जाता है एंड हिज और हर लाइफ जो है एकदम टर्मोइल में चली जाती है। तो सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ सच अ मतलब सिर्फ उस इंसान को नहीं, उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। इट इज़ सच अ केस। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट ऑफ मोर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अभी कुछ और बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, आई होप, आशा करती हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वीडियो समझ में आई होगी। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। और अगर कुछ आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।